Hello friends, welcome to second session of current affair comprehensive revision for CLAT 2021. दोस्तों, I'm sure you must have enjoyed the class, ठीक है, wherein we covered in detail lot of events. Now here we have a second module which is coming up, wherein we are talking about important laws and acts. That is our first session. This is in a way of connecting dots, covering 360-degree modules. दोस्तों, हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के द्वारा आपके लिए ये पूरी कहानी लेकर आए हैं, जहां पे हम आपको इंपॉर्टेंट लॉज और एक्ट के बारे में डिटेल में समझाएंगे. आप नोट बनाइएगा, हर एक इश्यू को डिटेल में समझिएगा. ठीक है, हमारा मानना है दैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दिस कंटेंट, and more importantly it will cover every small details needed from the exam point of view. Okay, so let's get started. Hello friends, welcome to ProTalent, and we are discussing about one capsule module on restructuring the tribunal system. Center has abolished various appellate tribunals and authorities, and they have transferred their jurisdiction to other already existing judicial authority. This is done under the Tribunals Reform, Rationalization and Conditions of Service Ordinance 2021. I'm sure you understand the term ordinance. Yes or no? So, under this ordinance, which was promulgated on April 4, 2021, it dissolves various existing appellate bodies. You may ask, sir, what do you mean by this tribunal? दोस्तों, tribunals are quasi-judicial body. Remember, they are not fully judicial bodies. Yes or no? They are quasi-judicial body. They perform various functions like the judicial functions, like adjudicating disputes, determining rights between contesting parties, making some administrative decisions, reviewing those administrative decisions. ठीक है, in a way they were sharing the burden of courts at various levels. Okay, and if people are not comfortable with this tribunal judgment, they can appeal this to the High Court or a Supreme Court depending on the scenario. Okay, ठीक है दोस्तों, tribunals are separate bodies, quasi-judicial bodies. ठीक है, now there are issues related to the functioning of tribunals. ठीक है, primarily you can say tribunals are run by the government. That means they are run by executive. They were not run by judiciary. Yes or no? So therefore this is one of the bigger problem. Yes or no? Because justice delivery is shifting from court to tribunal, which means it is shifting, you can say, from, you can say, judiciary to the executive, which is not okay. Yes or no? Number one. Number two, you can say many of the administrative issues like appointment of the members of this, you can say, tribunal, their performance appraisals, ठीक है, all those things were outside the purview of judiciary. Yes or no? Because everything was handled by executive. सिंपल है ना? ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज थी, बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज थे. ठीक है, और you can say एक तरीके से जुडिशरी को अनमाइंडफुल वे में लॉन्ग टर्म डैमेज किया जा रहा था. ठीक है, और इस वजह से, ठीक है, इस वजह से काफ़ी सालों से इसकी डिमांड आ रही थी दैट वी मस्ट डेवलप नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन. ठीक है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बना दिए, बट देयर वाज नो, यू कैन से, स्पेसिफिक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन. ठीक है, जो एक 1997 का एक एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम के केस के द्वारा बनाया गया था. ठीक है, मतलब उस समय पे बोला गया था कि करिए. ठीक है, बराबर है, बट अभी तक बना नहीं. मतलब टू बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होगी, जो उसके अंडर में सभी ट्राइब्यूनल काम करेंगे. ट्राइब्यूनल में जो काम करने वाले लोग होंगे, उनका अपॉइंटमेंट क्या होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैसे होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी. सो इन अ वे एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात थी, पर जो बन नहीं पाया. ठीक है,
तो अब जब ये एनटीसी बन नहीं पाया और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी काम करने में एक इनसे अच्छा कर नहीं रही थी, तो इनको निकालना ही एकमात्र रास्ता बचा था। ठीक है, सो दोस्तों, ठीक है, ये एक फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था कि भैया हम किस तरीके से इन लोगों को, मतलब ये अलग अलग तरीके के जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है, उनको हम रिमूव करेंगे। सम ऑफ द फेमस वंस आर फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट अथॉरिटी, ठीक है, जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के द्वारा बनाई गई है। सिमिलरली अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यू कैन से विच वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सिमिलरली अनदर बॉडी कॉल्ड एपेलेट बोर्ड, ठीक है, विच इज नोन एज एपेलेट बोर्ड, ठीक है, विच वाज एस्टेब्लिश्ड यू कैन से अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1909 के मुताबिक। ठीक है, सिमिलरली एयरपोर्ट एपेलेट ट्राइब्यूनल विच वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से, ठीक है, ये अलग अलग से ट्राइब्यूनल्स से कैंसिल करे गए। दोस्तों, देयर आर पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है, दे से इट इज बाईपासिंग द लेजिस्लेटिव सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस के द्वारा आया है, लीगल सिस्टम पे जाना चाहिए। ये सुनो, स्टेक होल्डर को कंसल्ट भी नहीं किया गया है, ठीक है, उसका कोई जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं किया गया है, ठीक है, कोई एक ढंग के एफर्ट नहीं बनाए गए एनटीसी बनाने के लिए और उसके बजाय इसको ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से लोगों का इनसे मानना है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि सर ये सब बात चलो हम समझते कि इन्होंने निकाल दिया, पर अभी तक जो ट्राइब्यूनल थे, ठीक है, वो ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहाँ से आई? ठीक है दोस्तों, ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी आई थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा आई, ठीक है, जिसने आर्टिकल नंबर 323A को इनकॉर्पोरेट किया, which empowered Parliament to provide for the establishment of annual tribunal for the adjudication of disputes related to services of the person appointed by central government body, state government body, local body, ठीक है, that is 323A and then 323B, okay, which is establishment of tribunal by Parliament and the state legislature related to the issues related to taxation, foreign exchange, industrial and labor issues, land reform, ठीक है, sealing on the urban property, election of the parliament and the state legislature, food stuff, rent and tenancy rights, ये सब you can say आर्टिकल नंबर 323B में बनाया गया। ये सुनो, तो यहाँ से इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आया। ये सुनो दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के बेसिस के ऊपर, ठीक है, ये ट्राइब्यूनल बनाए गए थे। उनमें से काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्यूनल ख़त्म करे गए हैं, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से ट्राइब्यूनल सिस्टम में रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, सो ये एक बड़ा बदलाव है, ठीक है। इसको अगर होलिस्टिक रिफॉर्म की तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उससे बेटर एनटीसी कर दिया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, ओके। दे कुडंट डू दिस एनटीसी किया होता तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होती। Okay, I hope this entire idea is very clear to you. Thank you very much for watching this and all the best. Hello friends, today we are talking about 3 farm bills. दोस्तों, I'm sure all of us are aware about these 3 farm bills. I'm going to cover the very important issues connected to this, okay? जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहां पे हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको पता होगा that agriculture is coming under the state list, yes or no, which is schedule 7 of Indian Constitution के मुताबिक वो state list में, ठीक है। और जो भी उसके अंदर अगर रिफॉर्म करने हैं, ठीक है, so obviously state is empowered to do this. So I'm sure you know this central list and the state list, that is how the federalism work in our country, yes or no। तो schedule 7 में state list बना के रखा हुआ है, ठीक है, और
सितंबर 2020 प्रेसिडेंट साहब ने ये 3 बिल को अप्रूवल दे दिया। ये तीनों 3 बिल के नाम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। नंबर 2 इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन agreement on price assurance and farm services act 2020, and the third one is the old one जो essential commodities act 1955 था, उसको amend किया गया and that is called essential commodities amendment act 2020। इनको bills बोलते हैं। ये सुनो, these 3 laws are going to change the way the agricultural produce is marketed, sold and stored across the country। ठीक है, फार्मर के मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रॉब्लम नहीं है। फार्मर का मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे उसको बेचेंगे, कैसे उसको स्टोर किया जाएगा, उसके ऊपर ये लॉ बना के रखे हैं। ओके, चलिए ग्रेट, एक एक करके देखते हैं दो से सभी लॉ के बारे में। Now the point is, you can say when we talk about, you can say the first act which is called Farmers Produce Trade and Commerce Protection, you can say Trade and Commerce Promotion and Facilitation, not the protection, you can say। उसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है that इसके पहले we had a system of APMC। इनका नाम होता है Agricultural Produce Market Committee। they were the mandis for the farmers, ठीक है। they were, you can say farmers are required to sell their output to this mandis। अब ये मंडीज हटा दिए, इंटरस्टेट ट्रेड बैरियर हटा दिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी पॉसिबल हो गई। सो कोई भी प्लेस पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कोई भी प्लेस पे उसका कलेक्शन हो सकता है, कहीं पे भी एग्रीगेशन हो सकता है। so thereby they are able to sell lot of thing outside। okay, ये एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कर दी, ठीक है। एपीएमसी एक्ट को बदलना पड़ेगा यहाँ पे, ये सुनो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीएमसी एक्ट के जो भी कमियां थे उस कमियों को हटाने के बारे में बात हो रही है। मार्केट फीस, कमीशंस, मोनोपोली, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डैमेज करते थे ये सब हटा देने की बात हो गई, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट with the freedom of choice of sale of their agriculture produce, the farmers will be in a position to realize higher prices। ऐसा माना गया। ओके, हालांकि ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे हुआ नहीं है। ओके, यूएसए में भी जब ऐसा हुआ तो ऐसा कोई फायदा हुआ नहीं है, फार्मरों को कोई फायदा हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, एंड कंज्यूमर मतलब आप और मैं, है ना, आपको और मुझे बड़ा फायदा होगा, ये सुनो, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अभी फार्मर, ठीक है, करीबन एपीएमसी के अंदर 15% का कमीशन पे करता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सुनो, ठीक है। लोगों का मानना है कि इससे हायर प्राइसेस बढ़ेगी और वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट का दुनिया डेवलप होगा, ठीक है। ये सुनो, वन इंडिया वन टैक्स, ठीक है। ओके, उसके लिए जो जीएसटी लेकर आए थे, जीएसटी ने कुछ बड़ा बेनिफिट तो किया नहीं है, बट यहाँ पे उम्मीद है कि होगा, बट एनीवे दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। ये 3 चीजों का बेनिफिट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण नेशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक महत्वपूर्ण एक ऐसे फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा। एक लीगल फ्रेमवर्क होगा फॉर फार्मर्स टू एंटर इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर देम। ओके, दिस रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट, ठीक है, जो प्रोडक्शन के पहले से एंटर किया जाएगा, इट विल लिस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई, क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड सर्विसेज, ठीक है भैया। इसके द्वारा एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, फ्री लेवल का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, ठीक है। कहां कहां पे होगा? कंसिलिएशन बोर्ड होगा, बोर्ड लेवल पे, फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट लेवल के ऊपर, फिर एपेलेट अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है। उसके द्वारा ये बनाया जाएगा, ये सुनो, सो दैट विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। क्या फायदा होगा?
फार्मरों को रिस्क मिटिगेशन का काम होगा। छोटे और मार्जिनल फार्मर है, उनको मार्केट की प्रेडिक्टेबिलिटी होगी नहीं। ये सुनो, जब इस तरीके के एग्रीमेंट होंगे तो वहां से रिस्क जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है उसका एक तरीके से रिस्क मिटिगेशन किया जाएगा। ये सुनो, बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। ये सुनो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरीके से क्या करेगा, पूरे इंडिया में, ठीक है, ये जो मार्केट होगा उसका प्राइसिंग लोगों को पता चलना चालू होगा। ये सुनो, लोग अपनी इनकम इंप्रूव कर पाएंगे, फार्मर डायरेक्टली मार्केटिंग कर पाएंगे अपने ऐसे सामान का, ताकि इंटरमीडियरीज थे, जो आड़तिया थे, जो मिडल मैन थे, जो उनको प्राइस आकर बताते थे, जो उनको सही प्राइस मिलती नहीं थी, जिसकी वजह से अब उनको सही प्राइस मिलना चालू हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है और होगा भी, ऐसा मेरा भी मानना है। ठीक है, देयर विल बी अ स्कोप फॉर इंक्रीजिंग you can say lot of price productivity। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की वजह से क्या लेवल का डेवलपमेंट होता है, आपके सामने एग्जांपल है पेप्सी कंपनी जो अपनी लेज और अंकल चिप्स वेफर बनाती है, ठीक है, वहां पे वो पटेटोस की ग्रेडिंग, पटेटोस की प्राइसिंग, उसकी सीड्स, उसकी प्लांटिंग के रिलेटेड मटेरियल, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ओवरऑल उनकी इनकम भी बढ़ती है। ये सुनो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट फार्मर इंटरेस्ट। दोस्तों, लीगल फ्रेमवर्क बनाने के बारे में बात हो रही है, दैट इज वेरी क्रूशियल। मेरा मानना है कि दैट विल बी अ गेम चेंजर। ओके, दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर लीगल फ्रेमवर्क। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड। पहला लॉ क्या बोलते, क्या करेगा? पहला लॉ बोलेगा फार्मर को अपने प्रोड्यूस का प्रमोशन और वो कहां बेचेगा उसके ऊपर उसको सपोर्ट करेगा। दूसरे में एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की संभावना पैदा होगी और अच्छे अच्छे प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे, लीगल फ्रेमवर्क होगा। एंड देन वी हैव थर्ड वन विच इज पुराना बिल था, है ना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, 1955 का लॉ था, उसको उन्होंने अमेंड किया। उस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने बोला दैट वी विल रिमूव सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, अनियंस, पोटैटोस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। दोस्तों, एसेंशियल कमोडिटीज का जो लॉ बना था कि भैया कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो गई और कोई लोग स्टॉक होल्डिंग करते हैं, ये सुनो, लाइक फेमाइन हो गया, वॉर हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गई, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो जब से रिटेल प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, ऑनियन, पोटैटोस, इसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई इसका प्रोटेक्शन होगा एसेंशियल कमोडिटी के अंदर, पर इस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने उसको डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट क्या किया? उसके प्रोडक्शन को, उसके स्टोरेज को, उसके मूवमेंट को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, उसको उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया। अब कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी फूड आर्टिकल के ऊपर स्टॉक लिमिट नहीं है, और गवर्नमेंट का जो आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन था वो इस एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको निकाल दिया। ये सुनो, उससे क्या एडवांटेज होगा? बिल्कुल बड़े बड़े एडवांटेज दोस्तों। जो 1955 का जो एक्ट बनाया गया था, ठीक है दोस्तों, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का जो एक्ट था वो एक तरीके से डिस्टॉर्टेड एग्रीकल्चर ट्रेड करने की कोशिश करता था। ठीक है, होता यह था कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स रखी जाती थी ताकि फार्मरों को लॉस सफर करना ना पड़े। ओके, जो स्टोरेज और वेयरहाउसेस और प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट वाली कंपनियां होती थी, ठीक है, उन लोगों को रोका जाता था कि भैया आप अनाप शनाप सामान लोगों से खरीदोगे नहीं, सरप्लस हार्वेस्ट के दौरान आप सब कुछ खरीद कर अपने पास नहीं रखोगे। ठीक है, ओके, और अब इस को हटाकर एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई। क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई? इन्वेस्टमेंट, एफडीआई भरपूर आएगा इसके द्वारा, ये सुनो, और इसके द्वारा जो फॉरवर्ड लिंकेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट मींस जो कोल्ड स्टोरेज है, ये सुनो, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ये सुनो, ये सब महत्वपूर्ण एक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है,
दिस इज हाउ द सिस्टम्स आर गोइंग टू वर्क। ये बात हुई। ओके दोस्तों, जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके इंप्लीमेंटेशन पे रोक लगाई है। इन लॉ को कैंसिल नहीं किया है, उसको इंप्लीमेंटेशन के ऊपर यू कैन से रोक लगाई है। एंड दिस इज नोन एज विक्ट्री फॉर फेयर प्ले। क्यों भैया विक्ट्री फॉर फेयर प्ले है, चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये जो 3 यू कैन से बिल थे, ओके, उनमें से अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बिल के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, जिसमें हमने बात करी सीरियल्स, पल्सेस, अनियंस, पोटैटो, ऑयल सीड्स, इनको इस परव्यू में से हटा दिया, उसका कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो ईसीए 1955 का बनाया गया था, ठीक है, दैट इज यू कैन से इन द डेज ऑफ स्कैरसिटी, जब स्कैरसिटी की दुनिया होगी तब ये लॉ लगाया जाएगा। ठीक है, और ये अलग अलग समय पे इंपोज करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बंगाल फेमाइन, ठीक है, और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1943 के मुताबिक इसको ये लाया गया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जिसके अंदर ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ जूट, जूट टेक्सटाइल्स, ये सब आने लगा था। ठीक है, अभी आपने देखा होगा ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ठीक है, उसके द्वारा ये जो आपके मास्क है, ओके, आपका सैनिटाइजर है, ठीक है, ये सब इसके अंदर पीपी किट थी, ये सब उन्होंने इसमें डालना चालू कर दिया था। ठीक है, वेरी गुड टू यू। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या बड़े मुद्दे निकले इसके ऊपर से। सबसे पहली चीज, ये जो लॉ लेकर आए, दे वर अगेंस्ट फेडरलिज्म। दोस्तों, एग्रीकल्चर and agriculture market are the state subject. Okay, entry number 14, entry number 28, entry number 14 talks about agriculture, entry number 28 talks about you can say market for it. ठीक है, वो state subject list 2 में आते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर सेंटर ने अपना लॉ बना दिया, तो ये एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो गया। ये सुनो, ठीक है, what will be the impact on the state revenue, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, वैसे भी स्टेट का जो यू कैन से पैसे कमाने का पावर था, वो तो इन्होंने हटा दिया। कैसे हटा दिया? ठीक है भैया, जीएसटी के द्वारा पूरी बर्बादी कर दी। ठीक है, अभी मिडल मैन हटा दिए दोस्तों, जो यू कैन से मिडल मैन हटा दिए, एपीएमसी हटाने के बारे में बात हो रही है। तो एपीएमसी 2006 से बिहार में नहीं है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि फार्मरों की इनकम वहां पे बेहतर हुई है। ठीक है, ये एक तरीके का लेसा फेयर, क्या बात हो रही है दोस्तों, लेसा फेयर। ठीक है, लेसा फेयर की सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी इकोनॉमिक इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। ओके, ऐसा बोलने की कोशिश है, डीरेगुलेशन करने की बात है। हमने देखा 1998 में शुगर का मार्केट है, पूरा शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, एक तरीके से डीरेगुलेट कर दिया, जहां पे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट बनने लगे, पर उसके द्वारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ फार्मरों को। फार्मरों की इनफैक्ट बर्बादी हुई। ये सुनो, ठीक है, और बहुत सारे फ्रॉड के केसेस होने लगे, जहां पे प्राइवेट लोगों के हाथ में देने की कोशिश करी। सो दैट वे इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल। अगर हम इसके ऊपर एक सवाल पैदा करें कि भाई व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी परेशानी की बात है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 28 इस मार्केट के बारे में, 14 अबाउट एग्रीकल्चर, और एंट्री नंबर 26 इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन दी स्टेट। ओके, उसके बारे में बात है। ठीक है, अब यहां पे सेंटर ने अपना लॉ बना दिया। सेंटर ने जो लॉ बनाया, ठीक है, वो कैसे बना पाए? ठीक है भाई, सेंटर लॉ बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं बना सकता, ये तो पक्का तय बात है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इन्होंने एक एंट्री थी कॉन्करेंट लिस्ट की, एंट्री नंबर 33, उसके अंदर उसके द्वारा ये लॉ बनाने की कोशिश करी। यहाँ पे होता है दैट सेंटर कैन मेक लॉज दैट वुड प्रिवेल ओवर द इनेक्टेड लॉज ऑफ द स्टेट। एंट्री नंबर 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट कवर्स trade and commerce in food stuff, including edible oil seeds, oils, fodder,
कॉटन, जूट, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने बनाने की कोशिश करी। सेंटर ने बोला कि वी कैन पास एनी लॉ, ठीक है भैया। जो फेडरल स्ट्रक्चर था भारत का, कि जहां पे स्टेट के पास कुछ पावर, सेंटर के पास कुछ पावर, ये सनो, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा again से प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है। जुडिशरी को इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर बात तो करनी पड़ेगी कि भैया ये वैलिड है कि नहीं। ये बड़ा मगजमारी का बात हो गया, ठीक है दोस्तों। एक और दिक्कत हो गई, वॉइस वोट के द्वारा इसको पास किया गया। ये सुनो, आर्टिकल नंबर 100 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भैया कोई भी सिटिंग ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे कोई भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सवाल यह है कि मेजॉरिटी डिटरमाइन कैसे होगा? मेजॉरिटी कैन बी डिटरमाइन ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर आएगा कैसे? वॉइस वोट के द्वारा। अब वॉइस वोट वाज अ प्रैक्टिस, ठीक है, काफी समय से चली आ रही परंपरा थी कि लोगों से पूछ लो भैया, हाउस में पूछ लो, सब लोग अग्री करते हैं, बोला हाँ। जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उसने सुन लिया कि उसको लगा कि सब कुछ हाँ है, ठीक है, तो बात बराबर है। अब ये एक कंट्रोवर्सी पैदा करता है, ठीक है, ये सही बात नहीं है। इस तरीके से अगर ऐसे बिल जो वॉइस वोट के द्वारा पास किए जाते हैं इन स्पाइट ऑफ डिमांड फॉर द डिवीजन बाय द मेंबर्स, तो ये क्लियर कट वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। लोगों ने डिमांड करी थी कि हमें तो डिवीजन करके बताओ, मैंने कोई डिवीजन किया नहीं, ठीक है। सो दैट वे दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट। आज हम बात करने वाले हैं टाडा पोटा यूएपीए आपस्पा के बारे में। दोस्तों, इतनी सारी रेड, इतने सारे अरेस्ट, इतने सारे एक्टिविस्ट हु आर पेनलाइज्ड, ठीक है, फॉर देयर अगेंस्ट ए कंट्रीब्यूशन टू द सिविल सोसाइटी। तो यहां से ये समझना पड़ेगा कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके पास टेक्नोलॉजी का पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल अवेलेबल है, ठीक है, और ये इस तरीके का पावर है जो इससे पहले हिस्ट्री में कोई भी सरकारों के पास नहीं होता था। उतना ज्यादा पावर है। बट नाउ वी आर इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। अगर पहले राजा महाराजा हुआ करते तो राजा महाराजाओं के अंडर में अगर आप और मैं रहते होते तो हमें बोलते वी आर सब्जेक्ट। ओके, नाउ we in a democratic society, we individual are we transiting from subject to citizens. हम बन जाते हैं, we are not subject now, ठीक है, we are now citizens, yes or no, ठीक है। अब हम सिटीजन बने हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जब हम सिटीजन बनते हैं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, ठीक है, हमारे कुछ अधिकार होते हैं, ये सुनो, ठीक है। सब्जेक्ट्स के पास अधिकार नहीं थे, ये सुनो, ठीक है दोस्तों। एट द सेम टाइम वी आर अगेन से नॉट लिविंग इन अ ओल्ड सिनारियो जहां पे पूरा का पूरा राज्य राजा चलाते थे और राजा सब कुछ करते थे, ठीक है दोस्तों। आज अगेन से तो मार्केट इकोनॉमी चलती है, ये सुनो। आज सब कुछ जो भी बंदा है, सिटीजन है, ठीक है, वो सब कुछ अपने बलबूते पे करता है, ये सुनो, ठीक है, सब कुछ अपने बलबूते पे करता है। इंडिविजुअल ग्रोज ऑन हिज ओन, ये सुनो। तो इस समय पे अगर स्टेट लोगों को एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ये सुनो। बिकॉज जो भी रिसोर्सिस है, जो भी लेबर है, जो भी प्रॉफिट कमाता है, वो बंदा अपने बलबूते पे कमा रहा है, ये सुनो। सो इस तरीके से ये सवाल पैदा होता है कि what kind of moral right a democratic state has on this citizens, ठीक है, सिटीजन्स के ऊपर कंट्रोल करने का उनके पास मॉरल अधिकार है क्या? दोस्तों, ये मॉरल अधिकार नहीं है, ये तो बिल्कुल तय हो चुका है और ये इसीलिए लोग इसके पीछे आगे पीछे भागते हैं। दोस्तों, देयर वर वेरियस सेंट्रल लॉस वर मेड, ओके, ठीक है, विच इज गिविंग an option of power in the end of state to control this citizens, okay, उनमें से एक था टाडा, ठीक है। टाडा का फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रैक्टिसेस
sorry, not practices, activities, Prevention Act 1987, पॉपुलरली नोन एज टाडा, इसको पॉपुलरली टाडा बोलते थे। ठीक है दोस्तों, दिस वाज अ मेन लॉ, उस जमाने में यूज किया गया था। ठीक है, जहां पे जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, ठीक है ना, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब वो जो दाऊद वाऊद मिलकर एक पूरी सिस्टम बनाते थे और एक पूरी डी कंपनी चलाते थे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, इन्होंने टेररिस्ट एक्ट डिफाइन किया था, डिसरप्टिव एक्टिविटी क्या बोलते हैं उसके बारे में डिफाइन किया था, उन्होंने जो बेल ग्रांट करना है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। ठीक है, एंड द लॉ ऑल्सो मेड कन्फेशन बिफोर पुलिस एडमिसिबल एज एविडेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब इस तरीके के लॉ लगाए जाएंगे तो आपको याद होगा वो आर्टिकल नंबर 20 के अंदर, ठीक है, ओके, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पर टाडा के अंदर सेल्फ इंक्रिमिनेशन चलेगा। इसका रैम्पंट मिसयूज हो रहा था। ठीक है, और इसकी वजह से 1995 में इसको लैप्स कर देना पड़ा कि भैया आप इसको खत्म करो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, देन केम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, है ना, वापस जरूरत पड़ी। ठीक है, 2001 में जब कंदहार का हाईजैक हुआ या उसके बाद यहाँ पे अपने पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, सो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट की ज़रूरत पड़ी। ये सुनो, जनरली इस तरीके के जब बड़े बड़े एक्ट होते हैं तब इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2002 में लेकर आया गया जिसका नाम दिया गया पोटा। ठीक है दोस्तों, 99 में जब इनसे कंदहार एयरलाइन हाईजैक हुआ, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, तो पूरे इंडिया में ये बातें फैलने लगी कि भैया एंटी टेरर लॉ तो चाहिए। देखिए बाकी देशों में कितने अच्छे लॉ है। इस तरीके से लोगों ने इनसे लाने की कोशिश करी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोटा के द्वारा जो सस्पेक्ट है ही कैन बी डिटेन्ड फॉर अप टू 180 डेज बाय स्पेशल कोर्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर पर्पस ऑफ टेररिज्म, ठीक है, के लिए जो फंड रेजिंग किया जाएगा उसको भी टेररिस्ट एक्ट बोल देंगे। दोस्तों, ये जो भी पुराना टाडा था, ये पोटा था, उसमें टेररिस्ट नाम यूज किया नहीं गया था। ठीक है, ओके, और इन्होंने टेररिस्ट एक्ट ही बोला। ओके, सो उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसके बारे में भी इन्होंने रूल बनाए और उसका नाम भी उन्होंने लिस्ट भी बना दिया। ठीक है, गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट कैन ऐड और रिमूव एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस अगेंस्ट से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसका भरपूर मिसयूज किया और 2004 में इसको रिपील कर देना पड़ा। ओके, 2004 में उसको रिपील कर दिया। ओके, सो व्हेन 2004 में पोटा को रिपील किया, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा जो एक पुराना लॉ था, ठीक है, एक पुराना लॉ था विच इज नोन एज यू से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसको स्ट्रेंथन करने के बारे में इन्होंने सोचा 2004 में। ठीक है, तो इसको इन्होंने अमेंड करा। ये सुनो, सो व्हाट आर द अमेंडमेंट, व्हाट डिड दे ट्राई टू डू। ठीक है, सो जो भी पुरानी डिफिकल्टीज थी अनलॉफुल यूएपीए में, ठीक है, इसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं, यूएपीए। ठीक है, उसको जो भी डिफिकल्टी थी उसके एनफोर्समेंट रिलेटेड, ठीक है, जो उन्होंने चेंज करे, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट भी इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, द अमेंडमेंट क्रिमिनलाइज्ड रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट को उन्होंने बोल दिया ये क्राइम होगा। होल्डिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, उसको भी क्राइम गिना जाएगा। ठीक है, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी क्राइम गिना जाएगा। इफ यू आर सपोर्टिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी क्राइम गिना जाएगा। ठीक है, और इट ऑल्सो इंक्रीज द टाइम अवेलेबल फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू फाइल अ चार्जशीट फ्रॉम 3 months to 6 months। उनके पास समय दिया गया कि भाई आपके पास एक से 6 महीने तक का आपके पास टाइम होगा चार्जशीट बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल। दोस्तों, उन्होंने जो एक से अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का बदलाव किया। दोस्तों, ये समझना जरूरी है
कि अगर यूएपीए एक्ट के द्वारा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक एनहांसमेंट है टाडा का, पोटा का, ठीक है। और टाडा और पोटा के पहले ये जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1967 में ये लॉ बना के रखा हुआ था, ठीक है, ओके। और उसके पहले समझिए ये जब लेकर आए इसके मॉडिफिकेशन के अंदर, तो एक स्पेशल एजेंसी थी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008, that was acting as a central counter terrorism against agency, okay, counter terrorism law enforcement agency NIA थी, ठीक है। सो दोस्तों जब ये बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए, ठीक है, that was all approved in August 2019 में, ये बड़े अमेंडमेंट के द्वारा ये पूरी चीजें बदलाई गई, ठीक है, ओके। सो इसके अंदर क्या बड़े फीचर्स लेकर आए? सबसे पहला, हु मे कमिट टेररिज्म, ठीक है, हु मे कमिट टेररिज्म, उसके बारे में उन्होंने डिफाइन कर दिया, मतलब हु विल कमिट टेररिज्म, ठीक है, तो वो उन्होंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। सो उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे दिया गया कि भैया वो डिफाइन करेगा कि कौन कौन, ठीक है, यूएपीए के अंदर इंक्लूड हो सकता है। और इसके द्वारा पहली बार, समझिएगा, पहली बार कोई पर्सन दैट इज इंडियन नेशनल और एनी फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज्ड एज अ टेररिस्ट, ठीक है, अंडर दिस यूएपीए, ठीक है, ओके। अनदर अगेन से फीचर ऑफ दिस यूएपीए वाज अप्रूवल फॉर प्रॉपर्टी सीजर, बाय एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना चाहे, अगर वो प्रॉपर्टी टेररिज्म के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको उन्होंने पावर दे दिया, ये सुनो, ठीक है। एट द सेम टाइम दे हैव अगेन से गिवन मोर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए, ठीक है, उसको उन्होंने और ज्यादा पावर दे दिया, ठीक है। और एट द सेम टाइम दे ऑल्सो इंसर्टेड सम ट्रीटीज के रिलेटेड शेड्यूल्स, ओके। तो ये करीबन 9 ऐसी ट्रीटी इन्होंने इंक्लूड कर दी शेड्यूल में, ठीक है। जैसे एक ट्रीटी थी कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, 1997 की ये ट्रीटी थी। दूसरी ट्रीटी थी कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस, 1979 की ये ट्रीटी थी, ठीक है। इसके अलावा दे ऑल्सो एडेड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, 2005 की ये ट्रीटी थी, उसको भी इन्होंने इंक्लूड करा, ये सुनो, ठीक है। तो ये सब तरीके के ट्रीटीज को उन्होंने इंक्लूड करा और यूएपीए को उन्होंने एम्पावर करने की कोशिश करी। दोस्तों टेररिस्ट एक्ट के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी ऐड करी गई, ठीक है, काउंटर फेटिंग करेंसी के बारे में बातें करी गई, प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स के द्वारा भी उन्होंने बोला गया कि भैया ये तो गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ओके। उसके अलावा अगर आप बात करें तो एक और महत्वपूर्ण लॉ है जिसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, दैट इज नोन एज आफ्स्पा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? आफ्स्पा, ठीक है। दोस्तों व्हाट इज आफ्स्पा, ठीक है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। आफ्स्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। दोस्तों सेंटर इज ऑब्वियसली कंसिडरिंग टू पार्शियली रिमूव दिस काइंड ऑफ अगेंस्ट ए सिनारियो। दोस्तों आफ्स्पा क्या करता है? आफ्स्पा गिव्स पावर इन द हैंड्स ऑफ आर्मी, ठीक है, और स्टेट और सेंट्रल पुलिस, ठीक है, टू शूट, टू किल समवन, टू सर्च द हाउसेस और टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर उनको लगता है कि ये लोग कोई डिस्टर्ब एरिया में है, ठीक है, और वो अगेन से कोई अगेन से प्रॉब्लमेटिक अगेन से एक्टिविटी करते हैं, तो ये भैया आफ्स्पा में वो उनके हाथ में पावर है, ठीक है। जहां कहीं मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी की एक्टिविटी होगी तो उन्होंने ये इंक्लूड किया था। दोस्तों आफ्स्पा, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल
कॉलोनियल ओरिजिन है उसका ओरिजिन ये है दोस्तों। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आपको पता होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी ने चालू किया था, ठीक है, अगस्त 8 1942, ठीक है। ये एक तरीके की लीडरलेस एक ऐसे मूवमेंट बन गई थी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को जेल में डाल दिया था। ये सुनो, ठीक है। तो इतने सारे लोगों को जब जेल में डाल दिया तो एक बहुत मैसिव स्केल पे वायलेंस हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से वाइस रॉय लिनलिथ गो ने, ठीक है, वाइस रॉय लिनलिथ गो ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 एक से अनाउंस कर दिया, ठीक है। इट इज बेसिकली अ लाइसेंस टू किल है, सीधा गणित है, बराबर है। तो उन्होंने चालू कर दिया। उसके बाद इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग अलग रीजन में आप्सपा लगाया। पहले आप्सपा लगाया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट 1952, ओके। आप्सपा लगाया इन्होंने 1958, नॉट 52, सॉरी, इट इज 58। दिस वाज इन आसाम एंड मणिपुर, ठीक है, ओके। वहां पे इंसर्जेंसी हो रही थी, ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल की इंसर्जेंसी हो रही थी, ठीक है। और वो लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे वहां पे, ठीक है। तो इसके द्वारा ये लगाया गया। उसके बाद उन्होंने आप्सपा लगाया इन 1983, कहां पर? पंजाब और चंडीगढ़, ओके, पंजाब एंड चंडीगढ़ में। क्यों भैया वहां पे लगाया? ठीक है दोस्तों, उस जमाने में पंजाब और लेकिन से चंडीगढ़ में काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी। आपको याद होगा खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है, अलग से उनको देश चाहिए था, ठीक है। तो ये खालिस्तान मूवमेंट डाई डाउन, तो आप्सपा 1997 में विड्रॉ करी गई, ठीक है, ओके। उसको विड्रॉ करी गई, 14 साल चली, ठीक है, ओके, 14 साल चली एंड दैट वे इट केम डाउन, ओके। उसके बाद वापस आप्सपा लगाया गया, ठीक है, आप्सपा इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, आप्सपा इन जम्मू कश्मीर इन 1990, ठीक है, दिस इज इन जम्मू कश्मीर, ओके। क्योंकि वहां पे अनप्रेसिडेंटेड राइज हो गया था मिलिटेंसी का, इंसर्जेंसी का जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने बोल दिया कि भाई यहाँ तो लगाना पड़ेगा, ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी लगा दीजिए और आप्सपा भी लगा दीजिए, ठीक है। सो उसके द्वारा आप्सपा के पास पावर दे दिया, ठीक है, ओके। सो दिस हैज हैपन इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, ओके। उसके बाद यू कैन से आप्सपा कुछ अलग अलग स्टेट में लगाया गया, ठीक है। कहाँ कहाँ लगाया गया आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आप्सपा इज देयर इन आसाम, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू कम अंडर आप्सपा इन 1958, ठीक है, जो उल्फा का मूवमेंट था, ठीक है, विच वॉज नागा मूवमेंट था, वहाँ से आया ये, ठीक है। आसाम पहला था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप्सपा लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे उनके पास ग्राउंड है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला था कि भाई आप्सपा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। देन वी हैव अ त्रिपुरा, ठीक है। आप्सपा वॉज एनफोर्स इन त्रिपुरा इन 1997, ठीक है, जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ पे फुल पीक पे थी और वहाँ पे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, उन सब लोगों ने वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। और उसकी वजह से त्रिपुरा, ठीक है, में आप्सपा लगाया गया था। करीबन 2015 में, मई 2015 में आप्सपा वहाँ से निकाला गया था, ऐसा एक से मतलब निकाला गया था और मिलिटेंट एक्टिविटी वहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है और उसकी वजह से वहाँ पे ये निकल चुका है, ठीक है, ओके। और उसके बाद मणिपुर के बारे में बात करें, ठीक है, मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर was given the status of disturbed area in 1980, okay। और क्योंकि मणिपुर में भी पीपल्स रिवोल्यूशन पार्टी ऑफ कांगलीपैक, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, इन सब लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी क्योंकि मणिपुर इज शेयरिंग अ बाउंड्री विथ रिपब्लिक ऑफ म्यांमार और वहाँ से बहुत सारी लड़ाइयाँ आती रहती है, ठीक है। और इसकी वजह से, ठीक है, ये मणिपुर में ये एक्टिविटी होती रहती है। मणिपुर से आपने देखा होगा आइरोम शर्मिला, जिन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग
और विमेन के ऊपर जो अनाप शनाप रेप होते थे उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। ओके, सो दैट वे आप्सपा वहाँ पे अभी भी चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का भरपूर वायलेशन हो रहा था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तिराप, चांगलेंग एंड लोंगडिंग, ठीक है, और कुछ और दूसरे पुलिस थानों में, 16 पुलिस थानों में, ठीक है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगता है और आप्सपा लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, ठीक है, वो लड़ाई करता रहता है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, ठीक है, वो भी लड़ाई करता रहता है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला था दैट वी आर रेडी टू पार्शियली मूव आप्सपा फ्रॉम आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ओके, उनकी सिचुएशन देखेंगे हम, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। मेघालय के बारे में बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, मेघालय ने, ठीक है, करीबन उनका आसाम के साथ कनेक्टेड है, तो आसाम से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जाती रहती है गारो रीजन में, गारो खासी जंतिया रीजन में, ठीक है। और ये काफ़ी दिक्कतें होती रहती है, ट्राइबल एरिया है, ठीक है। नवंबर 2015 में हाई कोर्ट ऑफ मेघालय हैज़ मेड अ सुओ मोटू सजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज आप्सपा इन मेघालय की एक स्पेसिफिक हिल के अंदर, ओके, ठीक है। चलिए ग्रेट। उसके अलावा अगर बात करें मिजोरम में, ओके, ठीक है, मिजोरम के अंदर भी इंसर्जेंसी चलती रहती है। 1986 का मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ था, तब से लेकर वो पीसफुल सिचुएशन है, ठीक है, ओके। और तब से गवर्नमेंट ये आप्सपा लिफ्ट करना चाहती है मिजोरम से, पर अभी तक निकाल नहीं पाई है, ठीक है। और नागालैंड के बारे में बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, सो नागालैंड के अंदर आप्सपा पूरे स्टेट में एप्लीकेबल है, वहाँ पे विड्रॉ नहीं किया गया है। एक फ्रेमवर्क लगाया गया था, नागा इंसर्जेंट ग्रुप NSCN IM, मोदी साहब ने इनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है। उनके जो सेक्रेटरी जनरल है दैट इज थ्यूलैंग मुईवाह एंड अगेन से नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट हुआ था, पर उसके बावजूद, ठीक है, उन्होंने इसको अभी तक आप्सपा वहाँ से हटाया नहीं है, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ 2015 में हुआ था, ठीक है, पर अभी भी वहाँ पे हालत खराब है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, सो आप्सपा इज डेफिनेटली अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 21, यस और नो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको भरपूर रोका जाएगा, ठीक है। कुछ राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 20 आर ऑल्सो curtailed, okay, they are also curtailed, and at the same time जो आर्टिकल नंबर 22 के द्वारा जो पावर दिया गया है दैट अगेंस्ट ए सेफगार्ड ऑन प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है, वो भी यहाँ पे चलता नहीं है, क्योंकि आर्बिटरी अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, डिटेंशन हो जाता है, अनाप शनाप पावर आरबीआई के ये गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। सो ये आप्सपा और एक तरीके से देखा जाए तो टाडा है ना, पोटा तो अब है नहीं, पर आप्सपा, ठीक है, और यूएपीए एक तरीके से बड़ी परेशानी की सिचुएशन में बैठा हुआ है। आई होप दिस एंटायर आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 102nd अमेंडमेंट के बारे में। मराठा कोटा, हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, व्हाट इज एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, यहाँ पे फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर कैसे आता है, ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी फॉलोड फॉर द इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribe and OBC category of you can say caste, yes or no। so दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 102nd अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। दोस्तों 102nd अमेंडमेंट, ठीक है, came into effect in August 2018, ओके, अगस्त 2018 को प्रेसिडेंट साहब का एसेंट मिल गया और यहां से अगेन से ये 102nd अमेंडमेंट आया। ये अमेंडमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट इंसर्टेड 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 338B एंड 342A, ये 2 आर्टिकल यू कैन से ऐड करे गए। 338 डील्स विथ यू कैन से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का स्ट्रक्चर, ड्यूटी और पावर क्या होगा,
Okay, and article number 342A was inserted, you can say, primarily to give power in the hand of President of India to notify a particular caste as socially and educationally backward classes, and power of parliament to change the list. Yes or no? This is very important. Power of parliament to change the list. दोस्तों ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 342 के बारे में बात हो रही है. Yes or no? ठीक है, चलिए ग्रेट. ठीक है, और उसके द्वारा एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया. ओके दोस्तों, दिस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओरिजिनली वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993, पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला अगस्त 2018 को. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. चलिए, वेरी गुड दोस्तों. अगर हम इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करें कि किस तरीके से, व्हाट इज अ प्रोसेस, what is a criteria to be followed for the inclusion of a particular caste, that is, you can say scheduled caste or scheduled tribe or OBC. ठीक है, इनको you can say ये particular reservation के लिस्ट में लगाना हो तो दोस्तों क्या क्राइटेरिया है और क्या प्रोसेस है. क्राइटेरिया ये रहा आपके सामने. ठीक है, क्राइटेरिया बोलता है दैट एससी के लिए जो पुराना अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चलती थी, उसकी वजह से अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को एक्सट्रीम सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हुई हो तो उनको से लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इंक्लूजन किया जाएगा. एसटी के लिए है ना, मतलब क्राइटेरिया ये है कि देयर हैज टू बी अ इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट, मतलब वो प्रिमिटिव तरीके से रहते हैं. मतलब जो पुराने ज़माने में से जंगलों में, गुफाओं में जो लोग रहते थे, ठीक है, प्रिमिटिव मानव है ना, उस तरीके से रहते हैं. ठीक है, या डिस्टिंक्टिव कल्चर है, या जोग्राफिकल आइसोलेशन है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, इसके बेसिस के ऊपर. और ओबीसी के लिए ठीक है होना चाहिए एक सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. ठीक है, एंड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज. ओके, दिस इज व्हाट द आइडिया इज. ठीक है, प्रोसेस कैसे चालू होगा. ठीक है दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल सा है. ठीक है, प्रोसेस बोलता है दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी फर्स्ट सेंड अ प्रपोजल. ठीक है, प्रपोजल भेजा गया. ठीक है, टू दिस प्रपोजल इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनसीएससी, ठीक है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ऑब्वियसली वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ then it will be you can say sent to RGI. ठीक है, now what is this RGI? ठीक है, okay, RGI is a registrar general of census commissioner of India. ठीक है, so basically इनके पास you can say census का डेटा है. so they need to know whether they are really backward or not. okay, तो उसका डेटा उनके पास होगा तो उनके पास जाएगा और ये लोग अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. अगर रिजेक्ट कर दिया तो बात खत्म है. स्टेट को बोला जाएगा कि भाई आप रिव्यू करिए, और उसके बावजूद अगर स्टेट बाद में रेफर करे कि आरजीआई को, भैया आरजीआई ठीक है कि हमें लगता है कि हमें इनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, ठीक है, और आरजीआई उस बात को अग्री ना करे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. पर अगर आरजीआई अग्री करेगा देन इट विल बी प्रोसेस अंडर आर्टिकल नंबर 341 एंड 342. ठीक है, उसके द्वारा वो प्रोसेस किया जाएगा. प्रोसेस करने के बाद फाइनली इट गोज टू दी पार्लियामेंट. ओके, सो पार्लियामेंट रेटिफाइज इधर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन और मॉडिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सबको ये पूरा आइडिया समझ में आ गया. वेरी गुड दोस्तों. अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन से टू बी प्रोवाइडेड इन 102nd अमेंडमेंट. ठीक है, दो चीजें करी. सबसे पहली चीज करी, एनसीबीसी बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ओके,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 338 बी इंसर्ट किया गया था, जिसके द्वारा एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, ठीक है। दिस इज अ 5 मेंबर कमीशन, ओके, इट इज अ 5 मेंबर कमीशन, ठीक है। इट विल इंक्वायर about complain related to this, again say backward classes के लोगों के लिए, है ना, कुछ कंप्लेन आई तो उसके ऊपर भी वो लोग ध्यान रखेंगे और पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एंड देन पॉइंट नंबर 2 ऑफ दिस, again say 102nd अमेंडमेंट विच इज आर्टिकल नंबर 342A जो इंसर्ट किया गया था, विच इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ OBCs which is aligned to SCs and STs का जो प्रोसेस है उसके मुताबिक, which means president shall notify a list of SEBC in relation to each state and UT in consultation with the governor of the respective state. Once the central list is prepared, only parliament could make inclusion or exclusion, जो हमने अभी प्रोसेस देखा था, ठीक है। द प्रोसेस इज सेम एग्जैक्टली लाइक SC और ST के मुताबिक, और यहां पे उन्होंने SEBC का डेफिनेशन इंक्लूड किया, ओके। यहां पे उन्होंने SEBC का डेफिनेशन इंक्लूड कर दिया, जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया था उसके मुताबिक, ओके। चलिए, ग्रेट, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस लिटरली मीन दैट इन केस you can say a particular class is found to be SCBC, ठीक है, OBC में उनको इंक्लूड करना है, then ठीक है, only a class found in the list which is notified by president under article number 342A is an SCBC class. सिंपल, ठीक है। वापस समझिए, सिर्फ वही क्लास जो इस लिस्ट में पाया जाएगा, और वो लिस्ट का नोटिफिकेशन कौन देंगे? प्रेसिडेंट देंगे, ये सुनो। इसीलिए ये जो जजमेंट आया, ठीक है, उन्होंने बोला दैट सेंट्रल लिस्ट वाज ओनली फॉर द यूज बाय सेंटर इन द रिजर्वेशन, ठीक है, फॉर जॉब्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, है ना, मोर इंपॉर्टेंटली दैट यू कैन से वहां पे स्टेट अपनी तरीके से कोई नोटिफिकेशन नहीं दे सकता, स्टेट डजंट हैव अ पावर, ठीक है। ये इसका मतलब आया। I think this is pretty clear to everyone, ठीक है दोस्तों। This definition obviously is applicable to the entire constitution, including article number 15(4) and article number 16(4), which is giving special provision for backward classes in reservation in public services, ठीक है, जो state भी implement करती है, which means state भी अपने यहां पे SCBC का रिजर्वेशन, ठीक है, इस तरीके से OBC के द्वारा रिजर्वेशन नहीं कर पाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ में आया? वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस समय पे, है ना, इस मराठा कोटा का जो यू कैन से जजमेंट आया, ठीक है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला मराठा कोटा इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको बोल दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुनो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? सबसे पहले सवाल ये पूछता है, ठीक है। 5 जज की बेंच बिठाई गई थी दोस्तों। ये सुनो, उन्होंने बोला मराठा कोटा लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। बेंच ने ये कंक्लूड किया that there was no extraordinary situation or any exceptional situation which requires Maharashtra government to break this Lakshman Rekha of 50% ceiling limit on the reservation. ये सुनो दोस्तों, आज की तारीख में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन का जो कोटा है दैट इज 52% है, ठीक है। जब ये रिजर्वेशन लगाया गया था, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, ठीक है दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब ये रिजर्वेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है, दिस वाज यू कैन से जजमेंट केम इन सम अराउंड जून 2019, ओके। उस समय पे, ठीक है, उन्होंने बोला, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया था दैट 16% रिजर्वेशन देना चाहिए,
ठीक है, कितना उन्होंने डिमांड करा था, 16%, ठीक है, 16% के डिमांड की वजह से ये नंबर बन जाता 68% टोटल, है ना। जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं 16% नहीं मिलेगा, बट यू कैन से 12 से 13% रिजर्वेशन आप कर सकते हो, विच मीन्स अभी वो 64-65% के रेंज में चल रहा था। 12% रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड 13% रिजर्वेशन फॉर जॉब्स, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बातें करी थी। दोस्तों ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसको उन्होंने रिवर्स किया, ठीक है, उसको उन्होंने रिवर्स किया, समझिए दोस्तों, ठीक है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जून 2019 में आया, उसके पहले नवंबर 2018 में, ठीक है, मराठा रिजर्वेशन का बिल महाराष्ट्र ने पास कर दिया था यूनानिमसली, ठीक है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर मराठा इज अ पॉलिटिकली डोमिनेटेड एक कास्ट है, ठीक है, तो बहुत बड़ी कास्ट है वो, ठीक है, 33% से ज़्यादा लोग वहाँ पे उस कास्ट के लोग हैं, एंड दे ओन 75% से ज़्यादा लैंड इन द स्टेट, ठीक है, दे ओन शुगर फैक्ट्रीज, ठीक है, देर आर सम अराउंड 12 chief ministers out of 18 chief ministers so far, they are coming from Marathas, ठीक है। Marathas are historically identified as warriors, ठीक है, पर पिछले कुछ सालों में एग्रेरियन क्राइसिस की वजह से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी, ठीक है, और उनको एग्रेरियन क्राइसिस की वजह से जब उनकी हालत बिगड़ी तो एक एमजी गायकवाड़ कमेटी बिठाई गई, और एमजी गायकवाड़ कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि ये करते हैं, ठीक है, ओके। सो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसने बोला दैट यू कैन से दी 102nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, इट इज आर्टिकल नंबर 342A के द्वारा प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर कास्ट एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इट सेज दैट इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू इंक्लूड अ कम्युनिटी इन द सेंट्रल लिस्ट फॉर SEBC फॉर द ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। द बेंच ने ये एग्री किया दैट ओनली प्रेसिडेंट कुड मेक चेंजेस टू द सेंट्रल लिस्ट of socially and educationally backward classes based on the data given by various sources including NCBC, ठीक है। स्टेट could only make suggestion, समझिए स्टेट के पास पावर क्या है, स्टेट के पास सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल देने का पावर है, ये सुनो, और ये पूरा प्रोसेस फाइनली किसके हाथ में जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, ये सुनो, ये बात आपको समझ में आई, वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात बनी, ये जो 50% का लक्ष्मण रेखा के बारे में बात आई दोस्तों, है ना, वो लक्ष्मण रेखा कहाँ से आया, ठीक है, दैट हैज कम फ्रॉम इंदिरा स्वाने केस, और इंदिरा स्वाने केस के मुताबिक बोला था दैट द रिजर्वेशन कैन नॉट क्रॉस 50%, ओके, ये उन्होंने बोल दिया था, ठीक है। अब दोस्तों यहां से एक बात तो तय हो गई कि जो इस पर्टिकुलर मराठा रिजर्वेशन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका था कि इसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट रिविजिटिंग दिस एंड देयर बाय दिस इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। तो अभी जो 50% का लिमिट है वो 50% का लिमिट रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आपको एक महत्वपूर्ण और बात पता होनी चाहिए विच इज रिलेटेड टू 103rd अमेंडमेंट। दोस्तों 103rd अमेंडमेंट, ठीक है, इज इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल नंबर 15 clause 6 and article number you can say 16 clause 6, ओके, ठीक है, ये दो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ये समझना जरूरी है। क्या किया इन्होंने, ठीक है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट को अमेंड किया इन्होंने, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15(6) clause 6 you can say allows that government will give reservation for economically weaker section of societies in the higher educational institutions including private institutions whether supported by state or not. Minority institutions are exempted, ठीक है, this is in the higher education. While article number 16(6) was introduced for you can say giving quota for economically deprived sections in the initial appointment in the government. Remember
it is initial appointment, okay, not in the promotion, okay, initial appointment, okay, ठीक है, in the government jobs. तो ये है 103rd अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है. आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन. सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ऑल द बेस्ट. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 91. आपने इस पर्टिकुलर एक्ट को राम मंदिर केस के साथ सुना होगा. सिमिलरली वी हैव दिस कृष्णा टेम्पल इन मथुरा, ठीक है, उसके केस में हम इसको सुन सकते हैं, यस और नो. और जो अभी लेटेस्ट आया था दैट वाज काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ था, विच इज पॉपुलरली नोन एज ज्ञान अगेन से वापी मॉस्क, नॉट टेम्पल, सॉरी, ठीक है, ज्ञान वापी मॉस्क का इश्यू है दोस्तों, ठीक है. दोस्तों, मार्च 2021 में एक पिटीशन फाइल करी गई थी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला था कि भैया इस पर्टिकुलर प्ली को चैलेंज किया गया है, आप बताइए आपका क्या मानना है, ठीक है. दोस्तों, कोर्ट को बोला गया है कि आप रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है, वेदर दैट अगेन से प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 which freezes the status of places of worship as it was on August 15, 1947. दोस्तों, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है, देश आज़ाद हुआ था, ठीक है. पर दोस्तों, ये एक्ट क्या बोलता है? दोस्तों, जिस दिन आज़ाद हुआ, ठीक है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन, अब ये ऑब्वियसली 1991 में है ना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ये लॉ लेकर आई थी दोस्तों. और ये लॉ वो ही एलपीजी की दुनिया में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में आया था दोस्तों, ठीक है. सो बात ये है कि नरसिम्हा राव जी ने ये जो लॉ लेकर आए थे, ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो भी जगह रिलीजियस कैरेक्टर की है, ठीक है, वो फ्रीज कर दी जाएगी. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीज कर दी जाएगी? विच मीन्स उस जगह को अब कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, उस जगह का कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मंदिर है तो मंदिर ही बनेगा, उसके नीचे क्या है इट डजंट मैटर. सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट प्रोहिबिट्स conversion of a religious place of worship or a section of religious place of worship into a place of worship of a different religion or different denomination, ठीक है, of the same religion. ये possible नहीं है, बराबर है, ठीक है, ये उन्होंने पहले बोल दिया. सिमिलरली, अगर इनके ऊपर कोई भी केस चल रहे होंगे, उनके ऊपर कोई भी केस, they will end from the commencement of this act एंड कोई भी फ्रेश अपील नहीं करी जाएगी. यस और नो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके दोस्तों, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लीगल प्रोसीडिंग्स कुड बी इनिशिएटेड इफ द चेंज ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वॉज डन आफ्टर द कट ऑफ डेट ऑफ August 15, 1947. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है दोस्तों, ये समझना जरूरी है. यहां से स्टेट के प्रति एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दिया गया दैट इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ठीक है, ये बिल्कुल उनको ध्यान रखना चाहिए. उस समय पे उस एक्ट में जो डिस्प्यूटेड साइट थी अयोध्या राम टेम्पल की, वो उसमें से एग्जेम्प्ट कर दी गई थी. ये सनो, ठीक है, और क्या क्या एग्जेम्पशन है दोस्तों इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. Any place of worship which is of ancient and historical monument or it is an archaeological site which is covered under ancient monuments and archaeological sites and remains Act 1958, तो उसको exemptions है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सिनारियो है, उसको डेवलप करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. और एनी डिस्प्यूट दैट हैज बीन सेटल्ड बाय पार्टीज or conversion of any place
that took place by acquiescence before the act commenced. मतलब दो पार्टियों ने एग्री कर दिया था और दो पार्टियों के एग्रीमेंट के पहल एग्रीमेंट की वजह से, ठीक है, ये डिस्प्यूट सेटल हो गया है, तो उसमें मतलब ये लॉ लगेगा नहीं, ठीक है. और एनी सूट विच हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा. दोस्तों, ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ लव, पीस और हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस लॉ को कोई वायलेट करेगा, ठीक है, तो उसको 3 साल की सजा होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जब राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस लॉ को अपहोल्ड करते हुए बोला दैट इट इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ अ सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ आवर नेशन, secular character of our constitution, and thereby you can say this is very important, it is very progressive, it is prohibiting retrogressive ideas. ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण था. पिटीशन ने क्या बोला था? पिटीशन ने ये बोला था the center has barred remedies against illegal encroachments on and pilgrimages, and now Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs cannot file a suit. They cannot approach High Court under Article number 226. Therefore, they won't be able to restore their places of worship and pilgrimage, including temple endowment, in the spirit of Article number 25 and 26. Article 25 और 26 की प्रोविजन के मुताबिक हमें तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है. Thereby, any illegal barbarian act of invaders will continue in perpetuity. ये देश जहां पे हिंदू धर्म की शुरुआत हुई थी, जैन धर्म की शुरुआत हुई थी, बुद्धिस्ट धर्म की शुरुआत हुई थी, सिख धर्म की शुरुआत हुई थी, इन धर्मों के ऊपर बारबेरिक विंड आए, भले वो क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम्स हो, ठीक है, वो इन्वेडर थे, ऐसा इस पिटीशन का मानना है. ठीक है, और इन इन्वेडर्स ने इन धर्मों को नुकसान पहुंचा दिया, और अब इन धर्मों के पास कोई तो लीगल राइट होना चाहिए कि इन लोगों को कोई ना कोई तरीके से राइट तो होना चाहिए. जो भी उनके पिलग्रिमेज प्लेसेस है या जो भी बरियल ग्राउंड है, ठीक है, वो उनके पास तो अधिकार होने चाहिए. हालांकि ये ध्यान रखना, पिलग्रिमेज और burial ground comes under state list. Center doesn't have any power. ठीक है, ओके. ऑब्वियसली सेंटर ये बोल सकता है कि हमारे पास रेसिड्यूरी पावर है, हम फाइनली कोई डिसीजन लगा सकते हैं, बराबर है, हम ये डिसीजन लगा सकते हैं. पर एक तरीके से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ से डेवलप हुआ, और मेरा मानना है कि इस पिटीशन को कि हमारे सेक्युलर फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. जो हो गया वो हो गया, ऐसा मान के आगे बढ़ जाना चाहिए. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, अबाउट द आइडिया ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट, एंड दिस इज अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018. दोस्तों, इसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की भी कहा जाता है या SC/ST एक्ट भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है इसके. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बोलो, एट्रोसिटी एक्ट बोलो, SC/ST एक्ट बोलो, ये सब इसी को रेफर करता है. ठीक है, ओके. सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज. ओके, अब बात ये है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट दिस? बिकॉज इन February 2020 सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of this amendment. Okay, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिड माना, that this amendment is valid. Okay, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसा अमेंडमेंट वैलिड ऐसा क्यों बोला? दोस्तों, ये जो यू कैन से अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है ना, 2018 का ये जो यू कैन से अमेंडमेंट वाला एक्ट है, ठीक है, वो अगस्त 2018 में पास किया गया था.
ठीक है, आप देखिए अगस्त 2018 में पास किया गया, फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। ओके, तो दोस्तों इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के फीचर क्या थे? ठीक है, अमेंडमेंट के फीचर थे, पहला था सेक्शन नंबर 18A, इट नलिफाइज द कंडक्ट ऑफ अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, ठीक है, टू यू कैन से अरेस्ट एन अक्यूज्ड। मतलब अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाला बंदा किसी के खिलाफ कंप्लेन करे, उसको एक्यूज करे, उसके आरोप लगाए कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ, ठीक है, कुछ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नजरिए से कुछ बोला है, गलत बोला है, ठीक है, तो कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, उसको सीधा पकड़ा जाएगा। ठीक है, दैट इज सेक्शन 18A। Person who has been accused of atrocity against SC/ST people will be excluded from the provision of anticipatory bail। उसको कोई एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा नहीं, और ये एक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक पावर देता है इंडिपेंडेंटली कि भाई आप उस अक्यूज बंदे को, ठीक है, कोई ऊपर की अथॉरिटी से अप्रूवल लिए बगैर आप इसको पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करी गई थी कि ये तो बिल्कुल गलत एक्ट है, ठीक है, इसको निकाल दीजिए, बिकॉज दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, इसका वो वायलेशन करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, उन्होंने ये डिमांड किया था, पिटिशनर्स ने ये डिमांड किया था दैट द पावर ऑफ अरेस्ट विच इज गिवन टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर should only be exercised after complying all the safeguards which are listed in CRPC, which is proper scrutiny करनी चाहिए, credible information होनी चाहिए और just और reasonable procedure होना चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर क्या हुआ? ठीक है, मार्च 2018 में, ठीक है, एक दो जज की बेंच थी, उन्होंने डिसाइड किया था दैट नो ऑटोमेटिक अरेस्ट कैन बी डन बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, एंड यू कैन से देयर इज नो एंटीसिपेटरी बेल, मतलब एंटीसिपेटरी बेल लोग ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने मार्च 2018 में दो जज की बेंच ने ये जजमेंट दिया था। इसके बाद अगस्त 2018 में ये अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा। ठीक है, ओके और सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच थी, ठीक है, उन्होंने ऑटोमेटिक अरेस्ट को रिस्टोर कर दिया। ठीक है, ओके, ऑटोमेटिक अरेस्ट को रिस्टोर कर दिया। फाइनली यू कैन से फरवरी 2020 में ये जजमेंट आया दैट यू कैन से व्हाटएवर द मार्च 2018 का जजमेंट था उसको नलीफाई कर देंगे, बिकॉज द SC/ST अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इज ऑब्वियसली ओवरराइडिंग द प्रीवियस जजमेंट। ठीक है, जो प्री अरेस्ट बेल, ठीक है, शुड बी ग्रांटेड ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अक्यूज्ड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन अरेस्ट अक्यूज्ड विदाउट एनी अप्रूवल from the senior officer and FIR is filed and it can be caused only by the court। ठीक है, ये उन्होंने फरवरी 2020 में जजमेंट दिया। दोस्तों ये जो एक्ट है, ठीक है, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी यू कैन से अमेंडमेंट एक्ट, जो 2018 का था, उसके पहले वो 2015 का था। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा कोई भी फिजिकल एट्रोसिटी करी गई है, ठीक है, जैसे किसी की मूंछ निकाल दी, किसी के सर के बाल निकाल दिए, वर्बल एट्रोसिटी करी गई, ठीक है, टू द डिग्निटी ऑफ द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, या उसको इंसल्ट किया गया, ठीक है, कि उसको चप्पलों का हार पहनाया गया, ठीक है, या सोशल एट्रोसिटी करी गई, ठीक है, उसको कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दी, फॉरेस्ट राइट्स नहीं दिए, ठीक है,
या तो उनको फोर्स किया गया कि ह्यूमन और एनिमल कैरकेसिस या उसको डिस्पोज ऑफ करो, वो आपका ही काम है, ठीक है, या ग्रेव्स डिग करो, फोर्सफुली उनसे करवाना, मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाना, ठीक है, देवदासी इसकी तरीके से रखना, ठीक है, ओके, कास्ट के नेम के ऊपर किसी को अब्यूज करना, ठीक है, एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन, कि उन वुमन को विच क्राफ्ट, डायन या चुड़ैल ऐसा नाम दे देना, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक एट्रोसिटी करना, कोई तरीके का सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट करना, ठीक है, पॉलिटिक्स में एट्रोसिटी करना, उनको जो नॉमिनेशन का फॉर्म भरना है उससे उनको रोकना, ठीक है, ओके, उनकी विमेन को हर्ट करना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वुमेन को हर्ट करना बाय रिमूविंग देयर गारमेंट्स, ठीक है, फोर्सिंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टू लीव अ हाउस, विलेज और रेसिडेंस, ठीक है, उनकी कोई बिलीफ के ऊपर एट्रोसिटी करना, ठीक है, या ऐसे कोई शब्द यूज करना या इस तरीके के अगेंस्ट से जेस्चर करना विच इज अगेंस्ट से ऑफ अ सेक्सुअल नेचर अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, इन सबको अगेंस्ट से क्राइम गिना जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बाकी सब जो क्राइम होंगे लाइक ग्रीवस हर्ट, इंटिमिडेशन, किडनैपिंग, ठीक है, ये सब तो ऑब्वियस होंगे ही होंगे, पर उसको भी एक स्पेशल तरीके का राइट यहाँ पे दे दिया था। सो दोस्तों, अगर ये बात करें तो ये जो SC/ST अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 2018 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसको अपहेल्ड कर दिया था और बोला था दैट दिस इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21. Okay, I hope this is very clear to you. Great, all the best. Hello friends, welcome to ProTalent, and we are talking about this Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act to. So, I'm sure that you are aware about a concept of federal structure. India has taken this idea of federal structure, okay, primarily from Canada with a strong bias, you can say, towards the center. Yes or no? This idea is what we took. However, we gave lot of autonomy in the hands of state, and thereby we developed, you can say, clarity that look, there is a center list जिसके ऊपर सेंट्रल लॉ बनाएगा, there are state list जिसके ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा, and there may be some kind of concurrent list जिसके ऊपर दोनों के पावर होंगे और दोनों लॉ बनाएंगे, ठीक है। और अगेन से देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी विल बी एप्लीकेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी? इट सेज व्हेनेवर देयर इज रिपग्नेंसी between state and center, center's law will prevail. ओके, चलिए ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये हमें पता है. अब हमने जब पूरे देश को अलग अलग भागों में डिवाइड किया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अगेंस्ट डिवीजन, एंड वी से वी आर यूनियन ऑफ इंडिया, वी आर नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वी डिवाइडेड स्टेट, ठीक है, वी डिवाइडेड पूरा यूनियन इनटू वेरियस स्टेट्स, एंड देन देयर आर वेराइटीज ऑफ द टेरिटरीज which were termed as union territory. For the administrative activity at the center, we have president, and then we have prime minister and council of ministers. However, president is a nominal head. वो अपना कोई तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते, उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. He has to work under the aid and advice of PM and council of minister. On the similar line, in the state, we said there is a governor, ठीक है, who will be working under the aid and advice of CM and council of minister. Who are these people? They are democratically elected people. Yes or no? They are democratically elected people. So it is all about the democracy. The people who have elected them, they will be ruling. All the decisions will be taken by them. However, we have a strong unitary bias, and we are union, we are not giving ultimate power in the end of state. तो इसीलिए सेंटर का एक पिट्ठू लगा के रखा होता है, पिट्ठू which means उनका आदमी लगा के रखा होता है, उसका नाम है गवर्नर. However, governor has to work under the aid and advice of CM and council of minister. पर कभी प्रॉब्लम हुआ, उसको लगा there is a problem, he can refer a matter
टू द सेंटर एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 356 के मुताबिक, विच इज यू कैन से प्रेसिडेंशियल पावर और प्रेसिडेंशियल रूल और विच इज कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी, उसके अंदर गवर्नर सीधा प्रेसिडेंट साहब को कम्युनिकेट करता है। हावेवर प्रेसिडेंट साहब को भी अगर खुद से लगे तो भी वो लगा सकते हैं इमरजेंसी। चलिए, ग्रेट। देन वी हैव यूनियन टेरिटरी विच इज डायरेक्टली अंडर द पार्लियामेंट। ये लोग सीधा पार्लियामेंट के अंदर में आते हैं, पार्लियामेंट इनके लिए लॉ बनाते हैं। ठीक है, पर होता यह है कि देर आर सर्टन यूनियन टेरिटरीज जो थोड़ी ब्रॉड हो गई, बड़ी बन गई, और उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं, उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड देम समथिंग कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, ताकि वो अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना सके। ठीक है, वहाँ पे लोग डायरेक्टली अपने लोगों को इलेक्ट कर सके, और वो लोग दे आर पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, विच मीन्स ये यूनियन टेरिटरी में सीएम होंगे और उनके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ओके, इनके जो गवर्नर होंगे उनको गवर्नर नहीं बोलते, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये उन्होंने मतलब बनाने की कोशिश करी उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली ये दिल्ली के साथ हुआ क्या दोस्तों? दिल्ली के साथ 1991 के बारे में बात है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली को पहली बार फुल्ली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई। ये सुनो कि भैया आपकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को हम समझते हैं, आपकी पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड असेंबली दे देते हैं और फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया एंड दैट वाज 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज अ स्पेशल स्टेटस, इट इज रीडिजाइंड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ऐसा उसका नाम दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, देखिए दोस्तों, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। कौन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर? आपने सुना होगा। ठीक है भाई, प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल, प्रफुल्ल पटेल हमारे गुजरात से हैं। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल साहब अनाप शनाप पंगा करे लक्षद्वीप में। ठीक है, ये दीव दमन और दादरा नगर हवेली में कहर फैला के अब वो पहुंचे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में भारतीय है जहाँ पे मतलब हैबिटेबल प्लेसेस है। अब उस हैबिटेबल प्लेसेस को ये बनाना चाहते हैं भरपूर महत्वपूर्ण टूरिज्म प्लेसेस। ये सुनो, मालदीव्स में लोग बहुत दूर दूर जाते हैं घूमने के लिए, तो क्यों लक्षद्वीप में नहीं जाएंगे? लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों की दुनिया तो सेम है। ये सुनो, जिस तरीके का मालदीव्स है उसी तरीके से लक्षद्वीप है। वही मजेदार सा क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर, ठीक है, सफ़ेद रेत, मतलब क्या मज़ा होगा घूमने के लिए। टूरिज्म पर्पस के लिए तो दुनिया बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, पर टूरिज्म एट व्हाट एक्सपेंस, इनको पता नहीं है कि क्या एक्सपेंस, बस उनको लगता है कि बड़ा हो। प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल पागलपंती से डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, लोग उनको अपोज भी करते हैं, बट चलो वो तो अलग बात है, आज हमारा वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए लक्षद्वीप में ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, एनीवे, सो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर को नाम दिया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अभी लेकिन से वहां पे है मिस्टर अनिल बैजल। ओके, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली is considered as a special case and a special constitutional status to be given by the parliament. ठीक है, ओके, और 1991 एक्ट के द्वारा फुल्ली इलेक्टेड असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे। ये सुनो, ठीक है, और ये हर चीज के ऊपर जितनी भी चीजें स्टेट लिस्ट में लिखी गई है या कॉन्करेंट लिस्ट में लिखी गई है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है, एक्सेप्ट पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। दोस्तों बिल्कुल जरूरी है, दिल्ली में पार्लियामेंट अवेलेबल है। ठीक है,
लोकसभा राज्यसभा अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर हाउस अवेलेबल है, प्रेसिडेंट साहब का घर अवेलेबल है। अगर ये सब चीज़ों के ऊपर, पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ तो अनाप शनाप काम कर सकती है। जस्ट इमेजिन कि भैया पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता, और मानो पीएम मोदी साहब होते और दिल्ली गवर्नमेंट ममता बनर्जी के पास होती, तो क्या हो सकता था दुनिया। आई एम श्योर यू कैन इमेजिन, आपका इमेजिनेशन मस्त दौड़ता होगा, ठीक है। सो दोस्तों, ये प्रोविजन के द्वारा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 था, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही क्लियर कट वे में एलजी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में डिवीजन लगा दिया, ठीक है। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा, कोई भी डिफरेंस होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात को प्रेसिडेंट साहब के सामने रेफर करेगा, ठीक है, और ऐसा जो भी पेंडिंग डिसीजन होगा, उस पेंडिंग डिसीजन में लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन से टेक डिसीजन, ठीक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ध्यान से समझना आप इस बात को दोस्तों, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, से बना के रखी थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन विच इज आर्टिकल नंबर 239 AA क्लॉज 4 को बोला था कि भैया यहां पे वर्ड बोला गया था एनी मैटर, ठीक है, वर्ड यूज किया था। सुप्रीम कोर्ट सेड द वर्ड एनी मैटर इन दिस क्लॉज डज नॉट मीन मैटर, ठीक है, ओके। पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर यू कैन से इज in the respect of exceptional circumstances, ठीक है, not in all circumstances, ये समझना जरूरी है। अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ काम करना है, उसका ये मतलब नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ये जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ठीक है। उन्होंने बोला था एनी मैटर डज नॉट रेफर टू एवरी मैटर। दोस्तों, ये समझना जरूरी है, दिल्ली इज हैविंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी, बड़ी बड़ी परेशानी है। यूनियन होम मिनिस्ट्री उसके अंदर काम करती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके पास है, उनकी म्यूनिसिपल बॉडीज है, 5 म्यूनिसिपल बॉडी है, एक और बॉडी उनके पास दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है, पॉलिटिक्स चलता है, तो दिल्ली की ये जो मिक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ऑल द मोर बुरा हो रहा है। तो सरकार ने बोला कि भैया ये जो लड़ाइयाँ हो रही है आपके और मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर और से इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, चलो हम उसको अमेंड कर देते हैं, ये लड़ाइयाँ हो ही नहीं, ये सुनो। सो दोस्तों, जो 1991 का एक्ट है कि जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, और टाइम बाउंड मैनर के लिए प्रॉब्लम अभी हो रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। तो इस क्लैरिटी को रखने के लिए उन्होंने क्या अमेंडमेंट करे दोस्तों। पहला अमेंडमेंट उन्होंने बोला द वर्ड गवर्नमेंट, समझना उसको ध्यान से, द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन इन द लॉ, ठीक है, शैल मीन, ठीक है, से गवर्नमेंट मीन्स गवर्नर, ठीक है दोस्तों। गवर्नमेंट डज नॉट मीन दैट इज सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं, गवर्नमेंट इज इक्वल टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है, ओके, इन मैटर्स वेयर लेजिस्लेटिव असेंबली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉस। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई लॉ बनाया और उस लॉ के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोलना है कि भैया इसको गोली मारो, तो गोली मार सकते हैं, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, ये समझना जरूरी है, द सेक्शन 44 ऑफ यू कैन से दिस एनसीटी दिल्ली एक्ट 1991, it was making it mandatory for the government to obtain the opinion of LG on all matters before a decision can be taken। तो पहले क्या था, ठीक है, एनी मैटर बोला था, जिसको उन्होंने एवरी मैटर समझ लिया था,
ठीक है, अब इन्होंने उसको क्लियर बोल दिया, एनी वर्ड हटा दिया, बोल दिया ऑल मैटर्स। ठीक है, दिस मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और अ कैबिनेट इन द स्टेट, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ओपिनियन लेना जरूरी है बिफोर दे इंप्लीमेंट एनीथिंग। ठीक है, दिस इज अनदर चेंज। ठीक है, विच मीन्स एग्जीक्यूटिव must obtain, you can say, consent from LG. ठीक है, another change, ठीक है, the legislative assembly shall not make any rule to enable to consider the matters of day-to-day administration of capital or conduct inquiries in relation to any administrative decision। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के पर काट लिए कि भैया आप कोई रूल नहीं बनाएंगे कि जो डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई काम करना है तो आप उसके लिए रूल नहीं बनाएंगे। ठीक है, उनके पर काट दिए भैया भरपूर। ठीक है, तो ये उन्होंने बड़े बदलाव कर दिए। ठीक है, सब लोग उसको अपोज करते हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के लिए, लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, उसका तो कोई मकसद ही नहीं रहा। फिर तो आप बोलो कि हमें कोई डेमोक्रेसी देनी नहीं है उनको। ठीक है, और वो यूनियन टेरिटरी के तरीके से काम करेगी। ठीक है, आप इतना ही बोल दो, फादर क्या मतलब था। सही बात है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि इनके पर कैसे काटे। ठीक है, ओके, और एलजी के पास इतना पावर कैसे दे दिया। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब देखते हैं इस मुद्दे के लिए कौन कहाँ केस करने के लिए जाता है। ठीक है, सो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण ठीक है से मुद्दा है, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस अब आगे कैसे शेप करता है वो तो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। आपके एग्जाम तक तो मुझे लगता है कि इतना ही शेप हुआ होगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।